So today I'll teach you chapter number 5, agriculture. I want to know what is the meaning of agriculture. अपने लफ्ज में कहो, in Hindi or in English. Means cultivating of land. Cultivation of land for agriculture is Yes, called yes. Cultivation of Yes. land for growing. Cultivation of land. Cultivation of Okay. The practice of cultivation of crops are known as agriculture. ठीक है, वेरी गुड cultivation of land. ओके, बस हो गया शांत। अब हमसे सुनिए, ठीक है ना। आपने अच्छा कहा, आपने बुक देखकर नहीं कहा, आपने अपने मीनिंग से कहा। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट नेसेसरी फॉर अस? Is agriculture, is doing cultivation is very very necessary for us? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. yes ma'am. Okay. Softly आप लोग बताइए। खूब जोर जोर से सब लोग मत बोलने लगे। मैक्सिमम बच्चे अपने आप को म्यूट रखिए, है ना। म्यूट रखिए, शांत होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप बताइए कि why is it necessary? Why is it necessary? Because by agriculture we get various of crops. Yes, okay. Because we people have three necessities. Basic needs. Basic needs. Three basic needs: food, cloth and shelter. First need है food. जैसे किसी गाड़ी को, vehicle needs fuel. Vehicle needs fuel to run. Same way, vehicle needs fuel to run. In the same way, we people need fuel. वो fuel क्या है? That is crops. That is food grain or food that which give us energy. Food give us energy. जो भी है, fruits है, vegetables है, dry fruits है, everything we get from plants. और कहाँ से आता है? By doing agriculture. ठीक है। So obviously it has a great importance. So what is the importance of agriculture? In second paragraph we will learn that. Okay, तो पहले मैं चैप्टर को हल्का सा पढ़ती हूँ, उसके बाद जहाँ जहाँ समझाना है समझाकर और फिर मैं इम्पोर्टेंस पर आती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ। We know that food is the basic requirement of human being for their survival. The requirement of food has led to the development of agriculture. Do you know about early people? Early people move from one place to another place. Why? In search of food. In search of food. Yes. Food. So sometimes when they saw that suppose कि कोई फल उसने तोड़ा, they plucked some fruit and ate. When they threw the seed, they saw after sometimes from their crops growing. Then they understood, कैसे होता है, जो हम लोग जो बीज से from the seeds crops grow. जैसे ये आइडिया उनके दिमाग में आया, they started growing crops. And once they started growing crops, they started living there. Because crops need water. अगर आप उसको वाटर नहीं देते हो क्रॉप्स को, तो वो सूख जाएगा, वो पेड़ तो सूख जाएगा। तो वो एक जगह रहने लगे। और किस वजह से एक जगह रहने लगे? ड्यू टू वॉच द क्रॉप। अगर उसमें फल आएंगे, फूल लगेंगे, कुछ भी होंगे, कोई भी उसको तोड़ के खा लेगा, तो आप उसको बचाने के लिए भी वहां रह गए कि मैं इसकी रखवाली करूंगा। मेरा घर यहाँ थोड़ा परमानेंट हाउस तो होता नहीं था, मैं बना लेता हूँ, यहीं रहूंगा, वाटर दूंगा, पेड़ में पानी दूंगा और यहाँ क्रॉप्स की रखवाली करूंगा। तो दिस गेव the idea of human settlement. They started settling one place. They started making their home. Understood? Now, what is the importance of agriculture?
most of the population of the world still depend of agriculture for its livelihood. फर्स्ट पॉइंट होगा, आप पॉइंट में आंसर लिखोगे, 5 पॉइंट इसमें देने होंगे. तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस लाइवलीहुड. सेकेंड, इट इज अ मेजर ऑक्यूपेशन. क्या आपने कभी सुना है ये लाइन कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री? आपने सुना? इंडिया इज एन agricultural country. Yes, ma'am. So about yes. Country. Why? Because 70% people depend on agriculture. Because 70% people depend on agriculture. So it is the major livelihood. Okay. So hence it is the backbone of our country. Economic जो स्टेटस है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें मैक्सिमम अर्निंग एग्रीकल्चर से आ रही है. इट इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. इट इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाई फूड. अभी तक आप बस यही बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर फूड सप्लाई करता है, एग्रीकल्चर फूड सप्लाई करता है. तो एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाई फूड टू द पीपल बट ऑल्सो क्रिएट huge market, also create huge market, okay, for the people, but also create huge market for tractor, thresher, combine harvester, insecticide. समझ में आया? ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए. अभिषेक कुमार बेटा आप शांत होकर बैठ जाओ, मोबाइल आपका घूम रहा है. हाँ, तो एग्रीकल्चर क्या करता है? लोग ट्रैक्टर खरीदने लगते हैं, है ना? अच्छा, और क्या खरीदने लगते हैं? थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, ये सब यूज होता है. कोई सीड्स से छिलके उसके अलग करते हैं, कोई पेस्टिसाइड, हर चीज के लिए ये मार्केट प्रोवाइड करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट हुआ, इट हेल्प इन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेट पॉवर्टी. फिर एक पॉइंट, इट इरेडिकेट पॉवर्टी. इरेडिकेट मतलब रिमूव, ये दूर करता है. पॉवर्टी मतलब गरीबी दूर करती है. और क्या करता है? एनहांस ट्रेड, ट्रेड को बढ़ावा देता है. हम लोग बहुत सारे क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश को सेल करते हैं. ठीक है. और क्या है? इट अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. ये फॉरेन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे फॉरेन मनी हमारे यहाँ आती है, तो इट अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशन. अब जिसके साथ हम ट्रेड रिलेशन कायम किए हुए हैं, उसके साथ जरूर ही मेरी रिलेशन अच्छी होगी उस देश के साथ. अगर किसी देश के साथ खराब रिलेशन है, क्या मैं अपने देश से कोई चीज उसको बेचूंगी? नहीं बेचूंगी. नहीं बेचेंगे, ऐसे करेंगे, है ना? उसके साथ मेरी रिलेशन खराब है. बट चूंकि हम ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ, तो उसके साथ हमारा क्या हुआ? रिलेशन भी अच्छा हुआ, है ना? एक तो फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न किए, दूसरा उसके साथ रिलेशन मेरी अच्छी हुई, है ना? फिर क्या है कि एग्रीकल्चर ऑल्सो देन नेक्स्ट पॉइंट, this is the last point. So I am repeating once again, it provide us livelihood, it help us to promote international trade, earn foreign exchange, remove poverty. It create huge market for tractor, thresher, combine harvester, pesticides, insecticides, etc. ओके. सो आप इसमें से 5 पॉइंट छांट कर एक जगह लिख लोगे, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप एकदम पढ़ लोगे. देखो, आपकी तो हो गया ऑनलाइन. मान लो कि नए साल से अगर स्थिति सुधर गई, अभी 3 महीना है इस साल को खत्म होने में, अगले साल से अगर स्थिति सुधर गई, तो मान लो कि एनुअल एग्जाम के समय स्थिति अच्छी है, तब तो नेट से ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा.
तब तो हम लोग स्कूल जाकर एग्जाम देंगे। तो अभी से पढ़ने की हैबिट डाला करो, है ना। कल होकर अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया Yes, ma'am. तो हमें तो स्कूल जाकर एग्जाम देना होगा, तब तो कोई घर बैठकर नहीं होगा। तो आप अभी से पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमको मिला 5 मार्क्स का, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब मैं एग्रीकल्चर के एक डेफिनेशन बताती हूँ। आपकी डेफिनेशन तो मैंने सुन लिया, अब एक एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। मैं कशिश पांडे को एडमिट कर लेती हूँ, बेचारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है, और मैं बता देती हूँ कि उसको अभिषेक कुमार अमन, अगर आप सुन रहे हो तो आप नेम, क्लास, रोल नंबर, एडमिशन नंबर के साथ आना, ठीक है। यही बात मुझे कशिश पांडे को कहनी हो। तो साइंटिफिक उसका कशिश पांडे बेटा, आप क्लास, रोल नंबर, एडमिशन नंबर के साथ आइए। इसी वजह से मैं आपको एडमिट नहीं की थी, आज फर्स्ट डे है, मैं फिर से आपको याद दिला दी, ठीक है। हो सके तो आप निकल जाइए क्लास से और फिर दोबारा एडमिट होइए, मैं आपको एडमिट कर लूंगी, ठीक। तो एग्रीकल्चर मीन्स, मैं नेक्स्ट अब की जो डेफिनेशन बता रही हूँ, इट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन है कि एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। इन वाइडर टर्म, एग्रीकल्चर इज द science and art of raising crops, rearing livestock, forestry and fishing। वाइड टर्म में इसको यूज किया गया है। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। कौन, माइक ऑफ करो, कुल्या माइक ऑफ करो, कुल्या। Yes, ma'am. It is the science and art Yes, ma'am. of raising crops, ठीक है, ये तो आप जानते थे। रेयरिंग लाइव स्टॉक मतलब जानवर पालना, फॉरेस्ट्री जंगल लगाना, एंड फिशिंग और मछली पालना, ये सब मिलकर हो गया एग्रीकल्चर। समझ में आया? अच्छा, ये भी मैं बता दी इसके साइंटिफिक डेफिनेशन। ये 1 मार्क्स में पूछता है, डबल टिक लगाओ और लिखो कि ये 1 मार्क्स में पूछता है। अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एग्रीकल्चर, अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर? कौन सी बात है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी? तो सबसे पहली बात है रिलीफ। मैंने कई बार आपको ज्योग्राफी पढ़ाते समय मैं समझा चुकी हूँ कि रिलीफ फीचर मतलब होता है माउंटेन, प्लेटो, प्लेन एक्सेट्रा। जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं जिसमें कि आपके ओशियन भी आ गए, आपके रिवर्स भी आ गए, सब कुछ, दैट इज रिलीफ फीचर। ओके, तो प्लेन आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आप पूछो क्यों? बिकॉज ऑन द प्लेन लैंड इट इज इजी टू, ट्रैक्टर चलाना उसमें इजी है। अगर माउंटेनस रीजन होता तो क्या ट्रैक्टर को एकदम ऊंचाई पर लेकर चलते आप? नो ना। जरा इमेजिन करो, जरा बेवकूफी वाली बात से इमेजिन करो कि क्या ट्रैक्टर लेकर ऊपर चढ़ते? नो। तो इट इज इजी टू, plain land is the suitable place for doing agriculture. Okay, अच्छा, और क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम लोगों ने क्या पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा है? जरा एक नजर मैं देख लूं। पॉपुलेशन आप लोग नहीं पढ़े हो, ह्यूमन रिसोर्सेस लास्ट है ज्योग्राफी के। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? अब जब ये वर्ड आ ही गया है तो मैं बता देती हूँ कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की मीनिंग क्या है।
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पर स्क्वायर मीटर, the person living in per square kilometer is called density of population. एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो कहलाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. आपके बिहार में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट है, पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत लोग रहते हैं. वहीं एक आप कोई डेजर्ट ले लो, कोई माउंटेनस रीजन ले लो, कोई जहाँ पे कि बर्फ ढके रहते हैं वैसा कोई प्लेस ले लो, वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होगा. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मीडियम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. यस, और ये कैसे होगा, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, जो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ क्यों होते हैं ज़्यादा, ये बहुत सारी फैक्टर्स है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. तो प्लेन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको खाने की ज़रूरत है, सब लोग क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा. ओके, और क्या प्लेन में रिवर बेसिन्स भी तो होते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, ये आपके सबसे बड़े जो डेल्टा रीजन है जो कि बहुत बहुत फर्टाइल है, सुंदरबन डेल्टा, वो तो प्लेन में ही है ना. तो वहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छे होते हैं. तो रिवर बेसिन्स एंड डेल्टास आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन माउंटेनस रीजन. ये लाइन आपको जरूर ही लिखना है, ठीक है. It become easier to use modern equipment on plain region, whereas it is difficult to use machines on rugged topography. Rugged topography क्या है, उबर खाबर या माउंटेनस रीजन पर कोई भी इक्विपमेंट को चलाना, it is not an easy task. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है फैक्टर दैट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट में भी 2 कंपोनेंट आते हैं, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रेनफॉल. क्लाइमेट का मतलब है टेम्परेचर एंड रेनफॉल. क्लाइमेट का मतलब है टेम्परेचर एंड रेनफॉल. तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल तो ऑब्वियसली आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है ना. कैसे, तो आपको सनलाइट चाहिए ही किसी पेड़ को ग्रो करने के लिए, और बारिश चाहिए ही, पानी चाहिए, विदाउट पानी वो सूख जाएगा. ठीक है, आप कितना भी आप इरिगेशन कर लो, बट बारिश के पानी से जो फायदा उस पेड़ को करेगा वो आपके द्वारा डाले गए पानी से ज्यादा बारिश का पानी इफेक्ट करेगा, जो भी हो. तो क्लाइमेट, एग्रीकल्चर इज हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. ईच क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट. इस चैप्टर में हम लोग इस लाइन को बार बार पढ़ेंगे. Each crop has its own requirement. कल आप लोग आ जाइएगा, सारे क्लास अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल मैं 2 ट्रिक बताऊंगी. वो ट्रिक इतना मजेदार है, हम लोग बार बार बच्चे की तरह उसको रिपीट कर करके पढ़ेंगे. और कल का क्लास मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा. जब हम लोग साथ बैठकर लर्न करेंगे वो चीज, वो 2 तरीका जो कि भानुमति के पिटारे में मैंने कैद रखा है, कल उस पिटारे को खोलूंगी और आपको वो याद करवाऊंगी. तो देखना कल कितना मजा आएगा, ठीक है ना. तो कल जरूर से आओगे और वो 2 ट्रिक हम लोग याद करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, और उस ट्रिक को और लोगों को हम लोग बताएंगे, ताकि और लोगों के लिए भी सोशल साइंस हार्ड ना रहे, वो इजी हो जाए. तो ईच क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट. अब देखो, एक जानवर को ले लो, मान लो कि एक कैमल है. तो कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है. उसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो डेजर्ट में सरवाइव कर सके. फिर एक पोलर बियर को ले लो. हाँ, पोलर बियर
आइस वाले रीजन में ऐसे सरवाइव करता है, उसी तरह से हर क्रॉप को, हमारे शरीर को भी, हम लोग को डिजीज हो जाती है कोई डिजीज, तो कभी आयरन डेफिशिएंसी से डिजीज होती है, तो कभी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, कभी विटामिन ए ई कोई भी डेफिशिएंसी से हमारी डिजीज होती है ना। तो डॉक्टर हमको वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है और बताता है कि ये रीजन है इस डिजीज का। तो क्रॉप भी वैसे ही है, किसी को फसल पकते समय बारिश चाहिए, किसी को फसल पकते समय बारिश बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर फसल पकने का समय आ गया और बारिश हो गई तो सारा फसल बर्बाद हो जाता है। किसी को एंकल डीप वाटर चाहिए, किसको, राइस को, उसको एंकल डीप वाटर चाहिए। किसी को थोड़ी से पानी से ही वो क्रॉप ग्रो करता है, किसी को एलुवियल मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए, किसी को ब्लैक सॉइल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ईच क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और फिर क्या है, तो किसी को कुछ टेम्परेचर चाहिए, किसी को कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए। तो दैट इज व्हाई द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट डिफरेंट क्रॉप पैटर्न। For example, wheat is a crop of temperate region and rice grow well in tropical region. Growing season is long in equatorial and tropical region as compared to the same in temperate region. अब एक बार फिर से temperate और tropical region आपको याद करवाऊंगी। आपको मैं एक ड्राइंग बनाकर आपको मैं पोस्ट करने वाली हूँ। आपको याद है ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ लिमिट होती है और टेम्परेट रीजन की कहाँ से कहाँ लिमिट होती है? किसी को याद है? किसी को 5 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड याद है? यस मैम, याद है। एक है इक्वेटर, है ना? हाँ, दूसरा बोलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, Tropic of Capricorn. आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तुरंत आपको बताती हूँ कि इसका क्या एक्सटेंट है। अच्छा, इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक कौन सा रीजन है? टॉरिड रीजन। कौन सा रीजन है? टॉरिड रीजन, ठीक है। बहुत एक्सट्रीमली हॉट होता है, दिस रीजन इज एक्सट्रीमली हॉट। और डिग्रीज में याद करो, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक टॉरिड जोन। अच्छा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है नॉर्थ टेम्परेट रीजन, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ होते हैं साउथ टेम्परेट रीजन, ठीक है। अब ऊपर का जो पोलर रीजन तक 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ हो गया पोलर रीजन, नॉर्थ पोलर रीजन, एंड 23 and 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ होता है साउथ पोलर रीजन। तो कह रहा है कि राइस ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल रीजन, जो टॉरिड मैंने बताया ट्रॉपिकल रीजन, एंड व्हीट इज ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन, क्योंकि हर रीजन की टेम्परेचर और रेनफॉल अलग अलग होती है। समझ में आया? अब है सॉइल। सॉइल भी वैरायटी ऑफ सॉइल हमने 7th क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा एलुवियल सॉइल विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल, फिर पढ़ा ब्लैक सॉइल जिसमें कि कॉटन ग्रो करता है, फिर पढ़ा माउंटेन सॉइल, फिर पढ़ा डेजर्ट सॉइल, फिर पढ़ा लैटेराइट सॉइल। Soil rich in minerals and organic matter support agriculture. Chemical composition and fertility of soil differ from place to place, which lead to variation in soil type. और each crop has its own requirement of soil also.
जैसे उसे अलग अलग टेम्परेचर और रेनफॉल की जरूरत होती है, वैसे उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की भी जरूरत होती है। ठीक है, और सॉइल कौन सा फर्टाइल होता है? एलुवियल सॉइल। इसके अलावा एक और चीज है ह्यूमस। डेड एंड डिके प्लांट एंड एनिमल फॉर्म ह्यूमस। जिस सॉइल में ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है वो सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। समझ में आ गया? तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ये है फिजिकल फैक्टर। और अगले दिन पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें की है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लेबर एंड कैपिटल। आज के लिए इतना ही हमारा काफी है। तो